Yes, in this videos we are taking the new topic, that is vector and 3D. First, this is chapter number your 10 and topic is your vector. In this video we will discuss the few definitions related to vectors. Although this is a new topic for 11th class. In 11th class, only physics students have studied the vectors, but the commerce students, for commerce students, this is a very important and new topic, but very easy. If you follow these definitions, if you remember these definitions, then the vector algebra is not a problem. Now, what is the meaning of directed line segment? Line segment everybody know. The part of the line is called line segment. For examples, if I take this is the line L, clear, the part on this line is called line segment. The word is directed, means the direction is also mentioned A to B. Clear? Or B to A, because a line has only two directions, either is from A to B or B to A. If it is A to B, then it becomes directed line segment. So the definition becomes directed line segment has magnitude as well as directions. Up to 10th, up to 11th classes you have studied only line segment, but now the word comes directed line segment, means the direction will also be mentioned to you. I hope this definition is clear. Next I am taking is a point of vectors to create the space. The definition what I have covered, that is removed. The one definition is removed, that is directed line segments. Next, vector. Definition of vector: a quantity that has magnitude as well as directions is called vector. Magnitudes as well as directions. The point A from the vector start is called initial point, and the point B where it ends is called terminal point. This is initial point, this is your terminal point. That means if I take this is the line L actually, so then AB first you can say directed segment, then AB is called as the vectors, and we will write from AB, that is the direction is from A to B. The point first I have written, this is called initial, यहाँ से वेक्टर शुरू होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है वो B है. The distance between the initial point and the terminal point of a vector is called magnitude of a vectors. Clear? And magnitude of a vector का मतलब हम vector लिख के इसके ऊपर ये absolute value डाल देते हैं. Since magnitude of any vector can never be negative, meaningless हो जाएगा, because magnitude is always a positive quantity. क्लियर? कई बार हम पूरी वेक्टर्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ये वर्टिकल बार जरूर डालेंगे और ये ए भी डालेगा. तो दोबारा पढ़ लेते हैं. एक वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए वेक्टर. तो वेक्टर्स को हम मीन्स किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्टेड सेगमेंट के पार्ट को वेक्टर कह सकते हैं. द पॉइंट ए from where the vector AB start is called initial point, point B where it end is called terminal point. The distance between the initial and terminal point of a vector is called magnitude. It is denoted by this and this. ये points मैंने आपको बता दिया. फिजिक्स वाले ऐसे भी शो कर देते हैं. A vector without arrow represent a magnitude. Magnitude of a vector कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं. ऑल्दो इनके ऊपर बेस्ड
आपके पास बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2. 10.1 क्वेश्चन नंबर 2. अब ध्यान से देखेंगे कि उसमें कुछ भी नहीं है. उन्होंने लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर. आपने ये बताना है कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है. तो 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट को. एंड वेट इज व्हाट? ए स्केलर क्वांटिटी. आप कहेंगे सर स्केलर तो आपने बताया नहीं. स्केलर वही होती है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शंस. अगला 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट. 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट मीन नॉर्थ वेस्ट जो है वो उसकी डायरेक्शंस है. तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी बिकॉज इट हैज़ गिवन बे क्वांटिटी विच इज बोथ. तो हम इस क्वांटिटी का नाम, फिजिकल क्वांटिटी का नाम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. ऑल्दो ये 10th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट. 40 डिग्री, 40 डिग्री आपको टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है. 40 डिग्री रिप्रेजेंट टेम्परेचर और टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी. टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये मैंने दूसरी डेफिनेशंस भी रब कर दी हैं. इससे धीरे धीरे करके हमारा स्पेस आ जाएगा. तो ये मैं कॉल टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट 40 वॉट. फॉर वॉट जो है वोल्टेज का यूनिट रहता है एंड वोल्टेज इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी. 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम. कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है. आई होप दिस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. ऑल्दो ये सारी फिजिक्स की टर्म्स हैं. 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो इसमें दो ही मैंने वेक्टर क्वांटिटी में आंसर दिए हैं. वन इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड का है, एंड नंबर 2 इज 6 एक्सेलरेशंस. क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी में आएगा, डिस्टेंस स्केलर में आएगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होती है. वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो आई हैव कवर्ड all the definitions of scalar quantities as well as vector quantities. Now next definition is positions vector. Positions vector को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं. मीन्स आपने 10th के 11th क्लास की 3D ज्योमेट्रीज में 3 डायमेंशंस को थोड़ा पढ़ा था. If this P is a point whose coordinate I have taken is x, y and z, तो वेक्टर OP मीन्स जब वेक्टर OP है तो O इनिशियल पॉइंट है, P टर्मिनल पॉइंट है, तो एरो ये आएगा. हैविंग O इज द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशंस वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O. O कोई फिक्स पॉइंट होता है. ठीक है. तो जब हम इनिशियल पॉइंट, जब हम कोई वेक्टर ए बी लिखते हैं तो ए इनिशियल है, मीन वेक्टर ए से स्टार्ट होगा. ओपी है तो ओ से स्टार्ट होगा, पी तक जाएगा. अगर हम ओपी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो वो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसलिए मैंने लिख भी दिया डिस्टेंस फार्मूला. तो पोजीशंस वेक्टर का मतलब यही होता है, स्पेस में कोई पॉइंट पी होगा, उसमें हम इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, फाइनल पॉइंट्स ले लेंगे, फिगर्स यही बनेंगे क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं. देन विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी. जो पोजीशंस वेक्टर 3 पॉइंटों के ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. तो हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ओ ए को हम ए कहते हैं.
मतलब इसका ये है, अगर जो कहीं पोजीशन वेक्टर ओ ए लिखना पड़ जाए तो हम इसको स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी, एंड ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल सी। ये पोजीशन वेक्टर के मीनिंग से। नॉर्मली जब ओ पी लोकस का कोई पॉइंट होता है तो हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमारा 2D के अंदर बेसिकली एक्स वाई चलता है तो हम यहाँ पे वेक्टर आर लेते हैं ओ पी, जिसके कोऑर्डिनेट लगभग हम फिक्स लेके चलते हैं। तो आई होप दिस पोजीशन वेक्टर इज आल्सो क्लियर। नाउ लेट मी रब दिस आल्सो। नेक्स्ट इज योर डायरेक्शन कोसाइंस। Next is your direction cosines. I have taken let p x y z be any point in space. तो ये यहाँ से ऐसे समझ लीजिए कि this is x axis, this is y axis and this is z axis, and p is any point in space whose positions vector may be called as OP. ठीक है, मैंने वेक्टर आर को ओपी कह दिया। मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मली हम वेक्टर ओपी को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर इज आर, आप आर को ओपी भी कह सकते हैं। दिस आर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीन्स कहने का मतलब ये लाइन आपकी एंगल अल्फा बना रही है। ठीक है, अब जब आप 2 डायमेंशनल पढ़ते तो ये अंडरस्टूड है कि वो एक प्लेन होता था। ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओपी ऐसे है जैसे ये पेन है। इसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये पेन है, अब इस पेन ने, ध्यान से देखिए, इस रेड पेन ने, ये एंगल तो अल्फा हुआ और वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बीटा हुआ। मीन अल्फा और बीटा का कोई आपस में कंसर्न नहीं है। और थर्ड एंगल जेड एक्सिस के साथ ये गामा हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशंस। आई मीन एंगल विद द पेन एंड एक्स एक्सिस इज अल्फा, एंगल विद दिस पेन एंड वाई एक्सिस इज बीटा, एंगल विद दिस पेन एंड जेड एक्सिस इज गामा। इट मीन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अल्फा तो वाई के साथ 90 माइनस। ये ओपी लाइन नज़र आपको ऐसे आ रही है बट है नहीं, ये ऐसे है। जैसे आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके नज़र आ रही है वैसे नहीं है ये लाइन। दिस इज ऑन दिस वे। अब एक बार इसको समझने की कोशिश करना। और एक्सिस की भी पॉजिटिव डायरेक्शंस ली गई हैं। देन एंगल अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। जो 3 एंगल्स बनेंगे, जैसे हमने इंक्लिनेशंस बताया था 11th में, क्योंकि अभी तक तो आपने ओपी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, लेकिन ये तो नहीं पता लगा ना कि ओपी ने डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। नई टर्मोलॉजी है। जैसे 11th में स्लोप होती थी, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, एंड कोसाइन ऑफ दीज एंगल मीन्स हमने यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा करना है, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपी की वेक्टर आपको आर पता लग गया। अगर मैं एक एक्सिस के लिए ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सिर्फ आप एक्स एक्सिस पे कंसर्न करें, ये एक्स वाई एंड जेड है तो ये एक्स आ जाएगा। तो व्हाट इज कॉस अल्फा फ्रॉम हेयर? कॉस अल्फा इज एक्स अपॉन आर। तो सिमिलरली आप यहां से कॉस बीटा भी कह सकते हैं, वाई अपॉन आर। सिमिलरली आप यहां से कॉस गामा भी कह सकते हैं, जेड अपॉन आर। पॉइंट क्लियर हो गया? किसी को डाउट्स? मीन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर? एंड दे आर यूजली डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन। ये इस टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं इनकी, हम इनको एल और एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज एल की क्या वैल्यू आ गई? एक्स अपॉन आर। एम की क्या वैल्यू आ गई? वाई अपॉन आर। और एन की क्या वैल्यू आ गई? जेड अपॉन आर। ठीक है, इसका मतलब अगर जो मैं यहाँ से एल आर मतलब दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, एम आर और एन आर ऐसा कुछ लिख दूं, तो बेसिकली ये रिजल्ट्स वो नहीं रहेगा। मीन्स ये डायरेक्शन कोसाइंस को हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर?
क्योंकि यहाँ से तो एक रिजल्ट हम ड्राइव भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर आपने निकाल ही रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये 1 आ जाएगा। तो इट मीन डायरेक्शन कोसाइन की जो पहचान है वो क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। ये आपका एक फार्मूला भी ड्राइव हो जाता है। तीनों डायरेक्शन अगर जो स्क्वायर करके ऐड करने से 1 आ जाए तो वो डायरेक्शन कोसाइन है। दोबारा समझ लीजिए, एक लाइन ओपी है जिसने अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस बनाया, बीटा विद वाई एक्सिस, गामा विद जेड एक्सिस, उनको मैंने डायरेक्शन एंगल कहा है। कोसाइन ऑफ दीज इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इस एक राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस अल्फा निकाल दिया, सिमिलरली करके दूसरे लिख दिए, स्क्वेयरिंग कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि पीछे आर्टिकल्स में ड्राइव कराया था। अब फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शंस रेशियो पढ़ लो। 3 numbers A, B, C proportional to direction cosine of a vector। मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन है सपोज करो किसी वेक्टर के, अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डायरेक्शंस रेशियोज बन गए। डायरेक्शंस रेशियो ऑफ वेक्टर R बन गए। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि आपने किसी नंबर से R से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2L 2M एंड 2N डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं। पूरी वेक्टर 3D में डेफिनेशन यूज होंगी। 3 नंबर A B C प्रोपोर्शनल्स होंगे। इज इट क्लियर? मतलब डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके ही आते हैं। इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं होगा। ये इनकी सम करते हुए पहचान है। लिखते इसको भी ऐसे ही है, डायरेक्शंस आर डॉट पोस्ट ऑफिस करली ब्रैकेट ए बी एंड सी, इस टाइप की ये डायरेक्शन रेशियो लिखे जाते हैं। जब डायरेक्शन कोसाइन लिखना होता तो डी डॉट सी डॉट एस एल एम एंड एन, दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सेम है। दोनों का मतलब यही है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शंस निकालना, बट इसमें तीनों का स्क्वायर ऐड करके 1 आएगा और इसमें 1 नहीं आएगा। दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डेफिनेशन डायरेक्शन कोसाइन की है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल्स होते हैं, इतना ही फर्क है। अभी ये और भी डिटेल्ड में होगा, अभी सिर्फ मैंने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है। ओके, आगे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर का मतलब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। जीरो वेक्टर्स मीन वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, बट डायरेक्शन चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, एनी डायरेक्शंस। उसका रीजंस आप अभी अभी देख लेंगे। मीन्स अगर जो मैं सपोज करो कि वेक्टर ए लिख देता हूं तो दिस मैग्नीट्यूड इज जीरो इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो। क्यों? बिकॉज इनिशियल पॉइंट भी है और टर्मिनल पॉइंट ए भी है, इसलिए डॉट बनेगा। जब ये डॉट होगा तो इट में हैव एनी डायरेक्शन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। जो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन लर्न नहीं करते 1 मार्क्स में कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहते। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। इसको बोलते हैं ए कैप। ए कैप, this is the way of pronunciations. Vector A divided by its magnitude. Magnitude mean distance formula. Co-initial vectors,
2 or more vector having same initial points, मतलब जिनके सेम इनिशियल पॉइंट्स होंगे उनको हम को इनिशियल वेक्टर कह देंगे। इसमें कुछ आपको मान लेते हैं कि एक फिगर्स बना देता हूं जो आपका क्वेश्चंस भी है, मुझे फिगर बुक से देख के ही बनानी है, एरो बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। वेक्टर ए इसको लिखा गया, ये इसका एरो है, वेक्टर बी का एरो नीचे की तरफ है और वेक्टर सी का एरो भी ए से ऑपोजिट है और वेक्टर डी का एरो भी यहाँ से ऐसे है। अब यहाँ से आप देखेंगे ए और डी को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इस फिगर में वेक्टर ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है। क्लियर। अगली डेफिनेशन मैंने कोलिनियर वेक्टर दी है। 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line, irrespective of their magnitude and directions. Irrespective of their magnitudes and directions, तो हम उनको कोलिनियर वेक्टर कह देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से पेयर कोलिनियर हो गए? कौन कौन से पेयर कोलिनियर आ जाएंगे? ए एंड सी। देखिए कोलिनियर के जो पेयर आएंगे इसी फिगर में, वेक्टर ए एंड सी, ये फर्स्ट पेयर आएगा। दूसरा वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे आपने ध्यान नहीं देना। इक्वल वेक्टर्स, 2 vectors are said to be equal if they have same magnitude and directions regardless of the position of their initial point. initial point कहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां मर्जी से स्टार्ट हो, बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो इस फिगर के हिसाब से वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स। Clear? It means every equal vectors are collinear vectors, but every collinear vector may not be equal. देखिए A और C कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है, क्योंकि A और C की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। इसमें क्या है? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर A एंड वेक्टर C आर कोलिनियर vectors but not equal। ठीक है, और वेक्टर B एंड D आर कोलिनियर एंड इक्वल वेक्टर्स। लेकिन जब आप इक्वल कह देंगे तो कोलिनियर कहने की जरूरत ही नहीं है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, a vector with the same magnitude as that of given vector but opposite directions means, जैसे मान लेते हैं A और C है तो वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस टाइम द वेक्टर C है, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ये नेगेटिव ऑफ द वेक्टर्स मीन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेक्टर यहाँ से OA ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि एरो मैंने ये डाल दिया तो ये 4 यूनिट्स है, तो यहाँ से जब मैं इधर लूँगा OA डैश तो ये -4 यूनिट्स कहना पड़ेगा मुझे, बिकॉज इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये नेगेटिव वाला वेक्टर होता है, जैसे वेक्टर A इज इक्वल टू यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट अलग अलग। तो मैंने इससे आपका एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी करा दिया है।
क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट्स थे, कोनिशियल, इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। जब कोलिनियर बट नॉट इक्वल कहेंगे तब फिर आपको ए और सी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए आर कोलिनियर। यस इट इज ट्रू। देखिए वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर ए आर कोलिनियर। मैं कहूँगा यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। बिकॉज वो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे हैव सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब ए और माइनस ए है इट मीन डायरेक्शन तो सेम है बट माइनस का फर्क है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। क्योंकि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए, मान लेते हैं ये लाइन एल है, इसी के ऊपर वेक्टर ये ए है, तो ठीक है माइनस ऑफ वेक्टर ए भी यही होगा, तो वेक्टर ए और माइनस ए पैरेलल तो हो गए ना। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये फॉल्स है। इज इट क्लियर? क्योंकि जो दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए ले लो और दूसरा वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ ए ले लो। अब ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं बट कोलिनियर्स हैं। टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर, ये भी फॉल्स है। कोलिनियर के लिए दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होने जरूरी हैं। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ये भी फॉल्स है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल की डेफिनेशन में वो भी पैरेलल होने चाहिए, तो इसमें तीनों फॉल्स हैं। अब डेफिनेशन लर्न करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 रह गया हमारे पास 10.1 का। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे लिखा जाता है एनी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम इस टाइप के सम करते हैं हमारी 2 डायरेक्शन फिक्स होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ऊपर की तरफ हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे की तरफ हम साउथ लेते हैं। हम ये 2 डायरेक्शंस कभी भी हम कहीं पढ़ें तो ऐसे ही करते हैं। और नॉर्थ के राइट में हम हमेशा ईस्ट लेते हैं और ये हम वेस्ट लेते हैं। क्लियर? जब कंपास की बात आती है तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही चलते हैं। इसका मतलब आपकी 4 डायरेक्शन हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। और कोई डायरेक्शन आपकी नहीं हो सकती। कहने का मतलब कभी भी डायरेक्शंस नॉर्थ और साउथ के बगैर कभी नहीं आएगी। अब उसने कहा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बना दो ईस्ट साइड पे। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये कहता नॉर्थ वेस्ट, तो वेस्ट की साइड पे 30 बन जाता। साउथ ईस्ट नीचे की तरफ बन जाता क्योंकि ये साउथ और ये ईस्ट है। साउथ वेस्ट इधर बन जाता। तो मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब आपको एरो भी देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में? एरो आप चारों तरफ दे दें बिकॉज वेक्टर्स में एरो की गलती हमेशा काउंट हो जाती है। एंगल 30 डिग्री भी मैंने मेंशन कर दिया। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट पी ले लो, ये ओ ले लो। ओपी को आप 40 किलोमीटर कह दो, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो शो करना था सिर्फ यही एक डिस्प्लेसमेंट है। इसी से रिलेटेड आपके नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है।
तो मैंने आपकी आज पेज नंबर 4, 24, 25, 26, 27, 28 पेजेस तक मैंने वेक्टर का एनसीईआरटी से शुरू किया है। जो बच्चा ये डेफिनेशंस, कोलिनियर, कोइनिशियल, इक्वल वेक्टर्स, इनको अच्छे तरीके से समझ लेगा, लर्न कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको वेक्टर्स का अगला पार्ट बहुत इजी होगा। पहली 2 एक्सरसाइज पे वेक्टर्स के ओनली कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑल्दो एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, बट कॉन्सेप्ट वाइज यू हैव टू कैरी दिस पॉइंट्स।